پنکی، یہ وہ عورت ہے جو خود چیلنج کرتی تھی کہ مجھے پکڑ کر دکھاؤ، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عورت خود ایک پولیس والے کی بیوی نکلی۔ پاکستان کی سڑکوں پر یہ نام بہت عرصے سے گھوم رہا تھا اور ہماری پولیس نے اکثر مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی پر یہ ہاتھ نہیں آئی، اور رپورٹس کے مطابق اس پر الزام ہے کہ وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی، ڈرگ ٹریفکنگ نیٹ ورک۔ یہ نیٹ ورک صرف ہماری سڑکوں یا دکانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اب تو یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں بھی پھیل گیا تھا۔ ایک دو دن پہلے ہی پنکی کو اریسٹ کیا گیا، پر جب اس کو کورٹ لایا گیا تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بغیر ہتھکڑی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اس حرکت پر ہماری عوام نے کافی زیادہ سوالات اٹھائے، جس کی وجہ سے کچھ پولیس آفیسرز اور ایک ایس پی بھی سسپینڈ ہو چکا ہے، اور اب جوڈیشل ریمانڈ کے بعد پولیس نے مزید انویسٹیگیشن کے لیے 3 دن کا فزیکل ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ اس میں پولیس یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ ڈرگس کا سورس کیا تھا، نیٹ ورک میں اور کون کون شامل تھا، فائنینشیل لنکس کیا ہے اور اس کا کرمنل ریکارڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کیس صرف ایک نام تک محدود رہے گا یا پھر اس انویسٹیگیشن سے ان چہروں کا بھی پتہ چل جائے گا جو پردے کے پیچھے رہ کر پورا نیٹ ورک چلاتے تھے، کیونکہ اکثر ہیڈ لائنز میں صرف ایک نام آتا ہے اور کہانی اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کیس کا اصل ماسٹر مائنڈ سامنے آئے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انمول عرف پنکی اور ماضی کی معروف اداکارہ اور سوشل میڈیا اسٹار جو راتوں رات بنی تھی قندیل بلوچ، ان دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اور اس کے جو گاہک تھے، کلائنٹس تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ آپ کے بیوروکریسی کے لوگ اس میں شامل تھے، پولیس کے بہت بڑے بڑے نام افسران اس میں شامل تھے، کچھ سیاسی لوگ بھی اس میں ملوث تھے، اور سب سے بڑھ کر ابھی کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ گرفتار ہو سکتی ہے تو اس نے ایک اپنا پیغام اپنے نیٹ ورک کے لوگوں کو پہنچایا کہ اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو یہ معاملہ جو ہے، یہ سپلائی جو ہے وہ یوں ہی چلتی رہے گی، میرا یہ نمبر جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا۔ اور آج تک اس پہ کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے کہ جب ایک بندہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا تو دوسرا بااثر بندہ جو تھا وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو بچا لیتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں یہ اپنے گھر سے ماڈل بننے یہ لڑکی جو ہے وہ نکلتی ہے، جس کے بعد ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے، ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ شروع میں ایک وکیل سے شادی اس نے کی جو منشیات کا گندا دھندا کرتا تھا، منشیات سپلائی کرتا تھا، بعد میں اس نے اس سے ڈیورس لی، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا ایک نیٹ ورک اس کا آغاز کیا، ایک پولیس افسر سے شادی کی، اور چند سال پہلے پنجاب میں لاہور کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اس نے پولیس اہلکاروں پر گاڑی بھی چڑھائی تھی، اور یہ کراچی سے بچ کر جو تھی یہ لاہور آئی تھی، تاکہ کراچی پولیس کو یہ مطلوب تھی تو یہ لاہور آئی کہ اس کو جو ہے وہ کوئی اریسٹ نہ کر سکے، پکڑے نہ، اور اس پر کسی کا شبہ نہ ہو، تو اس نے کیا کیا کہ تیزاب کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر جلائیں۔ قندیل بلوچ کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا تھا۔ قندیل بلوچ ایک بہت بہت ہمبل بیک گراؤنڈ، یعنی انتہائی غریب گھرانے سے قندیل بلوچ کا تعلق تھا۔ ماڈل بننے کا اس کو شوق تھا، کیونکہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ وہی کام ہے جس کے ذریعے آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی پہلے اس کی شادی ہوتی ہے، وہاں خاوند مارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ طلاق لے کے جب گھر سے نکلتی ہے ماڈل بننے تو پھر وہ بھی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتی ہے، اور کون کون اس کا استعمال نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد وہ کرا کے جن بھی مراحل سے گزر کے اینڈ پر جو اس کا انجام ہوا، اور اپنے بھائی کے ہاتھوں ہی وہ مار دی گئی تھی۔ اب آپ یہ لڑکی دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی عمر میں یہ گھر سے پیسہ کمانے، ماڈل بننے نکلی، اور اس کے بعد یہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو گئی، اور پھر یہ کرتے ایک بہت بڑا مافیا اس کو لیڈ کرنے لگ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب قندیل بلوچ مری تھی تو میرے خیال میں سب لوگوں کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ اینڈ سیم از دا کیس ود دس انمول کیریکٹر، انمول عرف پنکی، کہ آپ کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردیاں ایسے کیریکٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کہ انہوں نے بہت نقصان کیا ہوتا ہے، انہوں نے بچوں کے ذہنوں کو برباد کیا، ان کی ہیلتھ کو برباد کیا، ان کو ایڈکشن پر لگایا، طلبات اور ان سب کو، لیکن پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کیا اور کیسے ان کو مختلف لوگوں نے ایکسپلائٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا۔ تو ان سب کی ایکسپلائٹیشن میں اور ان کو اس مقام تک پہنچانے میں، ان کو خراب کرنے میں معاشرے کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اور پھر لینا ہوا تو 25 والا ہی لیے گا۔ جو 25 والا ہے نا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سب کو میسج کیا آج، 20 والا بیکار ہے، 25 والا بہت اچھا ہے۔ پر آپ کو نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے نا رائڈر کا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا کریں، یہ کوئی 50,000 کا بھی نہیں دے گا، اتنا اچھا اسٹاف ہے۔ اس کا باکس بھی گولڈ کلر کا ہوگا۔ آپ کو لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا رائڈر۔ اماؤنٹ کروا کے اسکرین شاٹ سینڈ کریں، آپ نے بھی اس اکاؤنٹ پہ اماؤنٹ کرنی ہے، اس میں نہیں کر، جلدی کروا دے گا اگر چاہیے۔ گولڈن اسٹف کو آپ دوسرے اسٹفوں کے ساتھ تھوڑی کمپیئر کر سکتے ہیں، وہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ اگر وہ چاہیے تو میں لڑکے سے کہہ دیتی ہوں، وہ بھجوا دیتا ہے۔ وہ پڑے میں 2-3 پیس پڑے میں خاص لوگوں کے لیے سائڈ پر رکھوائے ہیں۔
वो गोल्डन स्टफ है और 30,000 रुपए का है। पर चले कोई बात नहीं, आप 25 ही करवा देंगे। पानी पीने से नॉर्मल होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी, बहुत तेज है। गोल्डन में भी नहीं मिलावट की हुई और इसके अंदर भी मिलावट नहीं है। पर एज क्यों पूछ रहे हैं? 24 एज है मेरे। अरे बहुत, अभी आप रेस्ट करें। मैं 2-3 दिन से वैसे ही नहीं सोई थी। अभी मैं सोई हूँ 1 घंटा पहले आँख लेके, सब लोग कॉल्स कर रहे थे, मैं सजा से ना उठ गई। यार पिंकी के लिए एक वीडियो लेनी है मैं पिंकी के लिए एक वीडियो बहुत देर से लेना चाह रही हूँ, आपको बताती हूँ। असल बात बताएंगे इरफान पिंकी के लिए प्लीज बताओ। इरफान पिंकी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए प्लीज। मंशियात का काम आपने भी किया है बहुत, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पिंकी पकड़ी गई है जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी डीलर है, ये सच है? शायद अभी तो ये सुन रहा है, हाँ। अभी ना जाने अगर इसका जब मोबाइल फ़ोन खुलेगा तो उसमें से कितने ऐसे लोगों के नाम आएंगे कि जिनको सुनकर और देखकर शायद सब लोग हैरान हो जाएंगे क्या वाकई ये लोग भी ऐसे काम में मुलविस है। देखें, जब किसी मुजरिम की अपने जुर्म के एक्सेप्ट हो जाने के बाद या जुर्म के ज़ाहिर हो जाने के बाद अगर उसमें दीदा दिलेरी होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। रीज़न क्या होती है? वो पावर होते हैं उनके पीछे, जिसके ऊपर उसको नाज होता है, उसको भरोसा होता है कि यार कुछ भी हो जाए मेरा कुछ कोई उखाड़े। लेकिन एक बात बताएं, आपको लगता है ये नाम खुलेंगे? अगर पावर वाले लोग हैं तो वो मोबाइल को ओपन करवाएंगे? अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है पुलिस में, हमारी एजेंसीज में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो मुमकिन है कि नाम खुल जाए। लेकिन अगर ये मामला कहीं पे आपस में सेटलमेंट हो जाती हैं तो फिर एक अलग बात। क्या कहेंगे, ये अच्छा इकदाम है जो पिंकी का जिस तरह अदालत में आना था उसको यहाँ पे गरीब को भी हथकड़ियाँ लगा दी जाती ये हैं? पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमने ऐसा बहुत दफ़ा देखा है। इससे पहले भी ऐसा देखा हमने ऐसा सादसा कराम को देखा है कि वो लोग हथकड़ियों में आ रहे हैं, बच्चे 8-8 साल के हथकड़ी में आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का कानून है, ये काम की बात है। चूँकि ये पिंकी थी और ये हाईलाइट हो चुकी थी, इस वजह से इसको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया ने उठा दिया। इससे ज़्यादा पता नहीं आप जो बता दो में जाए देखा जाए। क्या मैंने पिंकी के पीछे बहुत सारे मेन लोग हैं जो अभी ओपन। पिंकी के मुताबिक राना नासिर ने न सिर्फ इसे अपनी मुबैना मंशियात नेटवर्क का हिस्सा बनाया बल्कि बॉबी और किरण जैसे किरदारों से भी मिलवाया। किरण नामी खातून का अफ्रीकी शौहर खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता है। कराची में चंद रोज पहले तक अनमोल उर्फ पिंकी सिर्फ एक नाम था, लेकिन अब तहकीकाती रिपोर्ट्स, मुबैना एतराफात और खुफिया रिपोर्ट्स के इंकशाफात ने इसे शहर की सबसे हाई प्रोफाइल मंशियात केसेस में शामिल कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ इस कहानी के नए किरदार सामने आ रहे हैं और अब आज न्यूज़ को हासिल होने वाली ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट ने इस मुबैना कोकेन नेटवर्क की अंदरूनी कहानी खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड से ताल्लुक रखने वाली अनमोल उर्फ पिंकी मॉडलिंग और अदाकारी के ख्वाब के साथ 2006 में लाहौर का रुख किया, जहां फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर लगाते हुए इसकी मुलाकात साबिक पुलिस अफसर राना नासिर से हुई। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। पिंकी के मुताबिक राना नासिर ने न सिर्फ इसे अपनी मुबैना मंशियात नेटवर्क का हिस्सा बनाया बल्कि बॉबी और किरण जैसे किरदारों से भी मिलवाया, जो बाद में इस रिपोर्ट में मुबैना नेटवर्क के अहम नाम बन गए। तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया गया कि किरण नामी खातून का अफ्रीकी शौहर खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता है, जबकि अनमोल पिंकी मुबैना तौर पर इस कोकेन में केटामाइन, मीथ और दीगर केमिकल्स मिलाकर कराची में सप्लाई करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक राना नासिर का मुबैना नेटवर्क कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक फैला हुआ था और पिंकी को कराची ऑपरेशंस का इंचार्ज बनाया गया था, जहां ब्रीफ केस के जरिए मंशियात की तरसील की जाती थी। बाद अज़ां राना नासिर से अलहदगी के बाद पिंकी ने अपना अलग नेटवर्क कायम किया, जिसके लिए खवातीन समेत मुख्तलिफ राइडर्स को इस्तेमाल किया जाता था और कराची में 7 राइडर्स पर मुश्तमिल एक मुबैना सप्लाई चेन चलाई जा रही थी। पिंकी ने दौरान तफ्तीश ये इल्जाम भी आयद किया कि 2024 में गिरफ्तारी के बाद मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर इसे छोड़ दिया गया। तहकीकात के मुताबिक रकम के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट्स और गुलशन इकबाल के इजी पैसा डिटेल से इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि तहकीकाती इदारे इस मुबैना नेटवर्क से जुड़े दीगर किरदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल अब भी वही है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन से ताकतवर किरदार मौजूद हैं। दौरान तफ्तीश अनमोल पिंकी ने एक नया इंकशाफ किया है कि अदाकार मुनीब भट्ट और सारा अली खान मेरे मुस्तकिल कस्टमर थे और मुझसे कोकेन खरीदा करते थे।
याद रहे ये दोनों अदाकार इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इमरान खान के हक में आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। सारा अली खान जिन्होंने इमरान खान के लिए बयान दिया था कि मैं इमरान खान के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुन सकती, इमरान खान के खिलाफ मैं एक अल्फाज नहीं सुन सकती। अच्छा, जबकि मुनीब भट्ट जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद की थी, अब इनके लिए एक नया जाल बिछाया गया है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे 9 मई का एक जाल बिछाया गया था। जो शख्स या जो सोशल वर्कर या जो सियासतदान इस रजीम को पसंद नहीं आता था उसे 9 मई के जाल में गिरफ्तार कर लिया जाता था, 9 मई के जाल में फंसा दिया जाता था। इसी तरह से इस जाल में अब हर वो अदाकार को फंसाया जाएगा जो इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद करेगा या जो इस रजीम के खिलाफ बात करेगा। पिंकी ने बताया कि जनाब एक इदारे के एहलकार ने मेरे भाई को उठाया और मुझ पर प्रेशर डाला, तो पहले 50 लाख दिए, उसके बाद वो हर महीने कभी 30 लाख और 25 लाख लेकर जाता था। मुलजिमा को 5 साल कबल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेके छोड़ा गया। 5 साल पहले किसकी हुकूमत थी पंजाब में, जहां पे 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दे के पिंकी को छोड़ दिया गया। अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, आप बता रहे हैं आप बियर के साथ कोक कर रहे हैं। बियर के साथ कोक बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, उसका क्रॉस है बियर के साथ कोक का। आप कोक के साथ विस्की पी सकते हैं पर कोक के साथ बियर नहीं पी। बियर का किसी भी चीज़ के साथ नहीं बनता, ठीक है, हर चीज़ के साथ वो जहर बन जाती है, वो क्रॉस हो जाता है उसका। अगर आप बियर को विस्की के साथ पियेंगे तब भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप उल्टियाँ कर देंगे। क्या बात है मीडिया वालों की, इतनी मैं पहले मशहूर नहीं थी जितनी अब हो गई हूं। और ये तुम सब कमेंट में मुझे शाइब अख्तर की छोटी बहन क्यों कह रहे हो? अनमोल पिंकी 10 जुलाई 1995 में पैदा हुई, बिल्कुल कराची में। ये एक हाई प्रोफाइल खतून बनी, 15 साल की उम्र में घर से भागी, लोगों के साथ जो भी उसने किया अपनी हवस पूरी की। उसके बाद इसने पहली शादी एक वकील के साथ की, फिर दूसरी शादी इसने एक डीएसपी से की। इस दौरान इसने बेशुमार घरों के चिराग बुझा दिए और सिंध के एक वजीर का बेटा भी इसका पीछे है, कई सियासतदान इसके पीछे हैं, बेशुमार बिजनेसमैनों के बच्चे जो मर भी गए हैं इसके नशे की वजह से। और हैरानगी की बात है ब्यूरोक्रेसी भी इसके साथ शामिल है, और हैरान होंगे कि इसके साथ कई बिजनेस कम्युनिटी के लोग, कई जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं। जिस तरह वो दंदहाती थी और उसके वर्ड्स इतने गंदे थे, मुझे शर्म आती है। उसने कहा कि मेरी टांगों के अंदर दुनिया बसी है, मैं जिसको टांगे दिखा देती हूं वो हिल नहीं सकता। इतनी बेशर्म बेहया जुबान बाजारी औरत भी इस्तेमाल नहीं करती। ये औरत की बदतरीन नस्ल में से अनमोल पिंकी पैदा हुई। असल कहानी वो निजाम है जो पिंकी जैसे किरदार पैदा कर रहा है, पालता है, बचाता है, जरूरत पड़ने पर कुर्बानी का बकरा बना देता है। मैं तो ये कहूंगा चीफ ऑफ फील्ड मार्शल साहब से इसको बचाया जाए, इसको कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये जब नंगी करेगी सबको तो बड़े बड़ों के नाम आने हैं। इसका जिंदा रहना इतना जरूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बेशुमार राज इसके सीने में हैं, वो कौम को दिखाने जरूरी हैं। कौन से किरदार ऐसे थे जिनकी वजह से अनमोल पिंकी बनी? इसके पीछे गुर्बत भी है, इसके पीछे पुलिस की प्रोटेक्शन भी है, इसके पीछे सियासी किरदार भी है, इसके पास जुडिशरी किरदार भी है, इसके पास ब्यूरोक्रेसी का किरदार भी है, और नजायज माफिया कमाने वाले लोगों का भी किरदार है जो गलत काम करते हैं। उस्ताद गल एवें कि हर पासे पिंकी 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 होई पई है। ये पिंकी की करेगी? पिंकी ने गल कही सी बड़ी ऐलानिया कि मेरा नेटवर्क जो पूरे पाकिस्तान च फैलिया होया। उन्हें सही किया, पता क्यों फैलिया होया? पिंकी जम्मी किते, पली किते, विआह किते, पहला विआह किते, दुआ किते। जनाबे आली ओदा पहला जड़ा हैगा ना, पहला बंदा वो इस टाइम बाहर बैठा होया, जिन्हें उन्होंने सही इस सारे बिजनेस का फार्मूला दसिया कि तू ग्रामा तो किलो किंज करना है, इस सारा समझाया। और उस्ताद उस तो बाद एक बंदा जड़ा उदा, उस तो बाद लाहौर दे विच साबिक पुलिस इंस्पैक्टर,
ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਪਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੀ होना ਜਦੋਂ भी कुछ होना है। लेट्स सी, अपडेट रवांगे अपन। मुनीब भट्ट का नाम बताया उन्होंने। आप मुनीब भट्ट सर्च भी कर लीजिए, बहुत से लोग जानते भी होंगे। उनकी फैमिली व्लॉगिंग बड़ी मशहूर है, उसका नाम इन्होंने बताया। और फिर उसके अलावा दरखशां, गिजरी, बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए हर महीने की रिश्वत दी जाती थी। कोकेन नेटवर्क के 700 से 800 सारिफ हैं जो मुसलसल लेते थे और ये अरबों रुपए का कारोबार है। और फिर इसके अलावा जब पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए गए तो इसने कहा कि खबरदार अगर आपने मुझे हथकड़ी लगाई तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी, और वो सस्पेंड भी करवा दिया। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि जिन पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया उनके पास ऐसी खुफिया डिटेल्स पहुंच चुकी थी बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम कि कहीं वो लीक ना कर दें, इसलिए उनको सजा के तौर पे सस्पेंड कर दिया गया। शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले सार्फिन में अदाकार मुनीब भट्ट शामिल है, ये मुलजमा पिंकी ने एतराफ़ किया है। और भाई की गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस एहलकार कामरान राइडर्स को अगवा करके रिश्वत वसूल करता रहा है।